Hello, ma'am. We welcome you to PEHEL series of live session Happiness 3.0. So, PEHEL is an organization which considers that mental health is as important as physical health, and we work for mental health awareness to the general population of India. So, we have Dr. Minakshi Bajpai. She is Assistant Professor at Department of Psychology, Arya Mahila PG College, Banaras Hindu University. She qualified UGC NET, followed by doctorate for her work on role stress and physical ailment amongst employed women. She also has been teaching psychology since 8 years. She also got authorized various chapters on books of psychology and published more than 20 research papers. She is also life member of various journals, including National Academy of Psychology and Indian Academy of Health Psychology. She is coordinator and member in various colleges, and she also served as programmer officer in NSS. She is also serving as counselor in IGNU, and she is also examiner of many other universities apart from Banaras Hindu University. She is also selected as COVID-19 help group, and she is providing free counseling services to people in this crisis. So we welcome you all, ma'am, and we are so grateful to have you here. Thank you. Thank you. So, ma'am, today's topic is happiness, and you know that these are so difficult times, and so much is happening around. Be it's pandemic, so many earthquakes, be it's politics, and so many things. So, talking about this happiness is really important. So, different people have different concept about happiness. So, some people gets happy when they eat their favorite meal, and some even don't get happy even when they, whatever they wanted to achieve gets successful, and even they are not happy. So, what according to you is happiness? Thank you. Thank you so much, Swasti. Thank you. The question you raised is very important, and this is need of hour, I think so. We all are working together. I think nobody else is working, but each and every individual at their personal ends. We all are working for happiness only. हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम खुशी ही ढूंढ रहे हैं, हम खुश रहें, हम कैसे रहें, यही एक क्वेश्चन है. तो एज यू सजेस्टेड, और बहुत सारे बुक्स में पॉजिटिव साइकोलॉजी में नाउअडेज तो गूगल इज आल्सो देयर. गूगल में आपको मिल जाएंगे कि देयर आर एन नंबर ऑफ डेफिनेशंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस आर देयर. बट अगर आप मुझसे बात करें तो मैं कहूंगी कि हैप्पीनेस जो है वो माइंड, बॉडी एंड सोल का एक कॉम्बिनेशन होता है. हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों से भी आप गेन कर सकते हैं. हैप्पीनेस बहुत बड़ी बड़ी चीजों से भी शायद ना मिल पाए हमें. तो हैप्पीनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आप BMW या मर्सिडीज में बैठे तो ही आप खुश हों, या अगर आप एक सिंपल सी रिक्शा में, इफ यू आर गोइंग एनीवेयर, इफ यू आर विद योर फ्रेंड्स, तो आप खुश नहीं होंगे. तो हैप्पीनेस इज व्हाट फ्रॉम माय साइड हैप्पीनेस इज अ फीलिंग दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस. किसी दूसरे के साथ यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि आपकी खुशी जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लाइफ लॉन्ग ये हमेशा ध्यान रखिए, मैं सबके लिए ये बात कहती हूँ कि अपना जब आप खुश हैं, व्हेन यू आर हैप्पी, आप शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपको खुश नहीं दिखेगा. आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, आप सबको हेल्प कर पाएंगे, आप कुछ नया कर पाएंगे, लोगों के साथ मिल पाएंगे, कुछ अपनी जॉब में, सोशल रिलेशनशिप्स में कुछ नया कर पाएंगे. तो हैप्पीनेस इज बेसिकली जॉय होता है, कंटेंटमेंट होता है. जब आप खुश होते हैं तो हैप्पीनेस में ट्रस्ट आपके अंदर डेवलप हो जाता है. तो हैप्पीनेस कोई बेसिक मेजर डेफिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड देयर. आई थिंक हैप्पीनेस आपका बॉडी का, माइंड का और सोल का, इन तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है. और अगर आप ट्रू हैप्पीनेस की बात करें तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रू हैप्पीनेस इज लव योरसेल्फ. आपको खुद से प्यार करना है, कोई दूसरा कभी कुछ भी आपके लिए नहीं कर सकता है. सो द मेजर पॉइंट फ्रॉम माय साइड इज कि व्हेन यू वांट टू फील हैप्पी, जस्ट गो लुक इनटू मिरर, ड्रेस फॉर योरसेल्फ, टेक सेल्फी. आप, मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा इस समय जो ये कह सकता होगा कि हमको सेल्फी में खुशी नहीं होती है.
शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा। एंड पीपल आर बेसिकली मिसिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ होती है, एवरीबडी, हम सब हमेशा कहते भी हैं बच्चों से कि क्या बच्चों हर समय सेल्फी लेते रहते हो। वो सेल्फी कुछ भी नहीं है, नथिंग। व्हेन यू रेसिप्रोकेट योर इमोशंस ऑनटू योरसेल्फ, जब आप खुद अपने आप को देखते हैं ना, शायद वो लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी आपको प्रोवाइड करता है। तो हैप्पीनेस के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है टू लव योरसेल्फ। जब हम अपने आप को प्यार करेंगे, जब हम अपने आप को लव करेंगे, तो सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, फैक्टर्स, जैसे अभी आपने बताया, यू आस्क्ड मी, कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों में नहीं मिलती है, बहुत छोटी छोटी चीजों में नहीं मिलती है। कोई नहीं किसी को कह सकता, यू कैन नॉट जज कि कौन सी चीज है जिससे मुझे खुशी मिलेगी। देखो, व्हेन कोई बच्चा जब बहुत छोटा सा होता है, व्हेन वी यूज्ड टू टीच डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो लोगों ने पढ़ा होगा, या हमें लगता है शायद हम सबके घरों के पास कोई ना कोई बच्चे होंगे। आप देखिए बच्चों को क्या होता है, अ सिंपल स्मॉल टॉफी, 50 पैसा टॉफी आप उनको दे दीजिए, वो उनके लिए वो रुपीज मैटर नहीं करते, उनके लिए मैटर करता है वो टॉफी। तो वो जैसे ही आपने वो टॉफी दी, एक स्माइल आ जाती है। रोता हुआ बच्चा है, आप उसको थोड़ा सा गिजल कर दीजिए, थोड़ा सा आप उसको गाल आपने टच कर दिया, यू स्टार्टेड चिन आप उसका छू दीजिए, आप देखिए ऑटोमेटिकली वो स्माइल करने लग जाता है। तो हैप्पीनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसे बाहर लेकर के जाएं, आप उसे मॉरिशस घुमा देंगे तभी वो खुश होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बड़े खुश होंगे। हम नेगेटिव की बात मैं नहीं करूंगी, पॉजिटिव में बात इसलिए करूंगी क्योंकि बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं मैम आपको से देखकर पॉजिटिविटी आती है, तो दिस इज ट्रू। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं मैम, क्या होगा लाइफ में, मैम बड़े परेशान, ठीक है, दैट इज ओके, बट राइट नाउ वी आर इन द सिचुएशन वी शुड फील हैप्पीनेस कि हम अपने घर में हैं, हम सेफ हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, जिस चीज को आप इतने दिनों से मिस कर रहे थे, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे, हॉस्टल का खाना खा रहे हैं, मैम ये कैसे होगा, मैम वो कैसे होगा, ऑल दो स्टूडेंट्स वेंट बैक टू देयर फैमिलीज, दे आर रिसाइडिंग विद देयर पेरेंट्स। हो सकता है 2 महीने के बाद जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, आप सब जॉब में चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब इतना टाइम मिलेगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करने के लिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू ऑल। तो प्लीज enjoy this moment, cherish this moment, I should say। तो मेरे हिसाब से हैप्पीनेस आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आप इमोशनल और मेंटली आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। हैप्पीनेस किसी के सिखाने से कभी भी नहीं आती। आप कहें कि आज मैं निगेटिव नहीं होंगी, आज मैं हमेशा खुश रहूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आपने कहा मैं निगेटिव नहीं होंगी, ऑलरेडी आप 2 कदम पीछे चले गए हैं उसी निगेटिविटी के लिए। मैं बच्चों से हमेशा ये बात कहती हूँ कि निगेटिव चीजों के बारे में सोचना ही अपने आप ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिविटी से फार दूर चलेंगे वहां से। तो इट्स बेटर, हम सबके लिए होता है कि हम पॉजिटिव एंड देखें। तो जब पॉजिटिव होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, तो नो डाउट आप खुश रहेंगे। तो खुशी के लिए अभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम मैं इसलिए लूंगी कि वो बड़ा आइकन बना हुआ है, हम सब उसको वो फाइट फॉर सुशांत सिंह राजपूत बहुत चल रहा है इस समय, हम सबको उसके लिए जस्टिस चाहिए, वी ऑल आर वर्किंग। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, अगर आप सब लोगों ने देखा होगा जो लास्ट उसका वीडियो जो उसका वायरल वीडियो हुआ है, मैंने भी देखा उस दिन, दैट वाज इन आईआईटी मुंबई, टिस की तरफ से था वो। उसमें उसने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी, ये सारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसलिए कहूंगी कि लोग, हर बच्चा वही सोचता है, इट वाज नॉट सुशांत सिंह राजपूत, इट वाज नॉट मी, इट वाज नॉट मतलब इट इज दिस इज स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आई थिंक हम सब ये बात सोचते हैं क्योंकि जो चीजें हमारे पास नहीं है, ही वाज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, उसके कई सारे भाई बहन थे, जैसे हम सबके घरों में होता है, शेयर्ड, सारी चीजें शेयर्ड रही होंगी मेरे हिसाब से। तो जब उसने वहां पर क्या कहा था कि व्हेन आई वाज स्मॉल आई थॉट कि खुशी या हैप्पीनेस जो होती है वो हमको मिलती है, उसने 2 चीजें कही थी कि मनी एंड रिकॉग्निशन। आई थॉट कि खुशी जो रियल हैप्पीनेस है वो मनी से आएगी एंड रिकॉग्निशन से आएगी। बट एज सुन एज ही ग्रू अप, उसको ये पता चला कि वो उससे खुशी थी ही नहीं। तो हैप्पीनेस
टाइम के साथ चेंज होने वाला एक कॉन्सेप्ट है। मैं ये बात यहाँ पर पहली बात रखूंगी। आपके लिए बचपन में जो चीज एक छोटा सा टॉफी मैटर करता था, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, व्हेन यू आर इन क्लास 10th और 12th, आप देखिए बच्चों को, एक गर्ल्स को बड़ा अच्छा लगता है अ ब्यूटीफुल टैडी, एक टॉफी, आपको चॉकलेट्स मिल जाएं, एक बास्केट अगर आपकी बर्थडे में कोई दे दे, ओहो यू आर ऑन द 7th heaven, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि ओह माय गॉड। थोड़े से और यू ग्रू अप तो आपको लगता है कि अच्छा ओहो अब तो मेरे लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस आ गई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको हैप्पीनेस दे देता है। फिर अगर आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, चेंज आपकी लाइफ में जाता है, तो यू थॉट कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, क्योंकि इसके पहले तक आपके जो मार्क्स होते हैं वो सारे मार्क्स आपके आपकी फैमिली या आपके पेरेंट्स को रिवील करते, उनकी बेटी का ऐसा, उनके बेटे का ऐसा था, उनके बच्चे ने टॉप करा। उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, वेरी कट। अब क्या हो जाता है, आपकी मार्क्स, आपकी लाइफ, वो आपकी अपनी पर्सनल हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस चेंज हो गई। फिर थोड़े से और बड़े होते हैं तो आपको लगता है मेरे पास एक लैविश हाउस हो जाए, मेरे पास मेरा व्हीकल हो जाए, मुझे आने जाने के लिए चीजें मिल जाएं, मैं अपने हिसाब से आ जा सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से सो सकती हूँ। इफ आई वांट टू हैव अ पिज्जा और एनीथिंग, मैं ऑर्डर करूँ और मैं उसको परचेज करूँ, ये खुशी दे देता है। फिर एक एज के बाद पता चलता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हैप्पीनेस मोमेंटरी होता है, थोड़े समय के लिए आप उससे खुश होते हैं, थोड़े समय के बाद वो सिचुएशंस चेंज हो जाती है, सिचुएशंस वैरी कर जाती है। तो हैप्पीनेस, इसीलिए मैंने कहा हैप्पीनेस आपकी अपनी ट्रू फीलिंग है। हैप्पीनेस कैन नॉट बी लर्न, पहली बात। हैप्पीनेस हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है कि हम किस तरीके से उस सिचुएशन को, अपने आसपास के लोगों को कैसे डील करते हैं, कैसे उनके साथ रिवील करते हैं। दिस इज बेसिक रेलेवेंस ऑफ योरसेल्फ। तो जितना अच्छे से आप अपनी लाइफ को जिएंगे, जितने अच्छे से आप उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे, आई थिंक सो यू विल लव योरसेल्फ। और जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिए कि मुझे लगता है शायद हमको हमसे ज्यादा ना कोई समझता है, ना कोई उसको फील कर सकता है। इफ यू आर हैविंग पेन इन योर एब्डोमेन, लोग कहेंगे अच्छा अच्छा दर्द है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते सुना है कि भाई अंदर से बाहर की चोट बेटर होती है, क्योंकि अगर बाहर चोट लगती है ना तो वो दिखता है कि हाँ इट इज ब्लीडिंग एंड आई एम इन पेन, बट अंदर वाला जो पेन होता है, इफ यू आर हैविंग हेडेक, तो लोग कहेंगे क्या जरा से सिर दर्द में बैठ गई हो, क्या जरा से पेट दर्द में बैठ गई हो। उसी तरीके से हैप्पीनेस होती है, ये आपकी पर्सनल फीलिंग है, इंडिविजुअल फीलिंग होती है, that cannot be shared with anyone, that cannot be expressed in front of anyone. I think so. थैंक यू सो मच मैम, ये आपने जो कॉन्सेप्ट बताया कि हैप्पीनेस इज विद इन आवरसेल्व्स इज सो इम्पोर्टेंट। सो मैम वी हैव टू क्वेश्चंस। सो कृष्णा पूछते हैं दैट हाउ हैप्पीनेस इज आवर चॉइस। Happiness is choice because मैंने जैसे अभी कहा ना, this I have to think, this I have to feel. choice मैंने क्यों कहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम जैसे इंडिविजुअल अप्रोच की बात यहाँ पर करी गई, तो इंडिविजुअल अप्रोच है, मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी ये मेरी चॉइस होगी, ये कोई दूसरा कभी हमको सिखा नहीं सकता है। इफ यू वांटेड टू हैव 80% मार्क्स, दैट इज योर चॉइस ना, कि मुझे 80% मार्क्स मिलेंगे तो ही मैं खुश रहूंगी, और अगर मुझे 80% मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मैं खुश नहीं रहूंगी, तो मेरी लाइफ में ब्ला 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 बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अगर मेरे 80% मार्क्स आएंगे तो मुझे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग मुझे अच्छा समझेंगे, लोग मुझे खुश समझेंगे, और बहुत सारी ऐसे फीचर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि हैप्पीनेस आपकी चॉइस होती है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप खुश रहिए। किसी के कह देने से कि अच्छा खुश हो जाओ, हंसो मुस्कुराओ, आप कितनी देर मुस्कुरा सकते हैं। तो किसी दूसरे के कहने से ना आप पेन को फील कर सकते हैं, उसी तरीके से ना आप उस हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। तो दैट इज योर चॉइस। आपको किसी को मदद करके आपको खुशी मिल रही है, आपको किसी को खाना खिला के खुशी मिल रही है, आपको खुद को खाना खा के खुशी मिल रही है, आपको सो के खुशी मिल रही है, ये तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है। I think I have answered much. Yes ma'am, perfect. So we also have one more question. So Deepa पूछते हैं, can one be completely happy?
now this is a very big question to deal. ये कंप्लीटनेस बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है. अगर हम साइकोलॉजी में बात करें तो एक कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिवील करता है आपके होलनेस की बात करता है, आपके पर्सनालिटी को ओवरऑल हम लेकर चलने की बात करते हैं. तो कंप्लीट हैप्पीनेस आप कब ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है शायद कोई ऋषि मुनि या कोई ऐसा होगा, क्योंकि आप अपने आप से खुश है तो हो सकता है शायद कोई दूसरा आपसे खुश ना हो. और जब कभी भी कोई सेकंड पर्सन, कोई सेकंड थॉट, कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में जैसे ही वो इंटरप्ट करती है, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल, तो अगर हमको किसी भी, दीपक अगर आप जो बात क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं, अगर कोई भी हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उसके बिहेवियर से या हम उसकी वजह से कुछ इफेक्टेड फील करें, अगर ऐसा होता है then this is okay. आप 100% हैप्पीनेस में जा सकते हैं, आप रह सकते हैं. लेकिन as far as I am being concerned, शायद ही कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा हमारे आसपास जो मैं ये कहूँ कि वो ये कह सकता हूँ कि मुझे सोसाइटी में किसी के भी दुख से, किसी भी सिचुएशन से, किसी के भी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो जब हम इस सिचुएशन में हैं नहीं फिलहाल कि हम ये फील करें कि हमारे लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वो आपको स्टेट आ जाएगा जब आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, कि आपको किसी के बोलने का, किसी के कहने का, किसी के क्रिटिसिज्म का, खुशी का भी उतना आभास नहीं रह जाएगा. तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. हैप्पीनेस को लाना, हाँ ला सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस दिन हम इस मेंटल स्टेट में चले जाएं कि मुझे किसी के होने ना होने से, किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ता है, हमें लगता है शायद उस दिन हम कंप्लीट हैप्पीनेस को अचीव कर पाएंगे. आई थिंक सो. थैंक यू सो मच मैम. सो मैम, अब जैसे कि आपने इतना कुछ बताया, बट मैं जानना चाहती हूँ कि ये पैंडेमिक कैसे हमारी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट कर रहा है. पैंडेमिक की बात अगर मैं करूं तो स्वस्ति, पैंडेमिक में मेजर जो चेंजेस आए हैं हैप्पीनेस के लिए, या जिसके लिए कि लोग बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं हैप्पीनेस को नहीं बट यहाँ पे मैं लाइफ को रिवील करने की बात करूंगी. देयर आर फ्यू एरियाज, 4 M's मेरे हिसाब से हैं. 4 M अगर मैं डिनोट करूं तो फर्स्ट वन इज दैट अफेक्टेड इज मूवमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप देखिए कि इफ यू आर इन फीवर, एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगी. आप फीवर में हैं, यू आर लाइंग डाउन ऑन द बेड, आपको लगता है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं कहीं भी नहीं जा सकती. लेकिन एक सिंपल सी बात है कि एक मैंडेटरी पोर्शन है, एक ऐसी जगह है जहां आपको जाना ही जाना है, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, आप चेंज गो. में चेंज आता है, आपके पर्सनल जो आपने गेटअप लिया है उस पे चेंज आता है, जो लोगों के साथ आप मिल रहे हैं उसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि घर में आप हैं, यू आर लाइंग ऑन योर बेड और आपकी मदर या जो आपके घर के लोग हैं वही आपके पास में. लेकिन व्हेन यू आर शिफ्टेड ऑन टू सम अदर एरिया जहां पर आपका ग्रुप चेंज हो गया है, जहां पर वो लोग चेंज हो गए जो हैं, तो सिचुएशंस वेरी कर जाती है. वहां पर आपको ऐसा अक्सर देखने को लिए मिलता है कि आप जब वापस वहां से आएंगे तो ऐसा होता है कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ. तो पहली इंपॉर्टेंट बात आ गई है पेंडेमिक की कि लोगों का मूवमेंट बंद हो गया, फिजिकल मूवमेंट बंद हो गया. फिजिकल मूवमेंट बंद होने से अभी हमें लगता है शायद ही कोई होगा जो ये कहता होगा, क्योंकि whenever you are looking onto your wardrobes, this is very common and genuine, and females के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है ये, कि वो कह रहे हैं कि पता नहीं ये कपड़े हम कब अपने पहनेंगे. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब आप रोज जाते थे कॉलेज या आप अपने वर्किंग एरिया में जाते थे, यू हैव टू सेलेक्ट, तो वो मूवमेंट की बात थी, आज मैं क्या पहन के जाऊं, कल मैंने क्या पहना था, व्हाट शुड आई कैरी, व्हाट शुड आई हैव विद मी. तो मूवमेंट इफेक्ट कर गया, पहला पेंडेमिक का जो ड्रॉबैक है. सेकेंड थिंग इज माइंडफुलनेस चेंज हो गई. पहले हम जब मूवमेंट आपका होता है तो माइंड के साथ जो हम कहेंगे, हम ओवरऑल अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक मेंटल ऑरा आपका बदल जाता है.
सेकेंड थिंग इज दिस कि आपको जिस चीज के साथ पहले आपको अच्छा लगता था, अब आपको हो सकता है कि वो चिड़चिड़ा बना दे, आपको स्ट्रेस फील हो, आपको एंजाइटी फील हो। तो ये बहुत जरूरी हो गया कि हम किन पॉइंट्स को, किन बातों को लेकर के आई एम फीलिंग सिक्योर, आई एम फीलिंग हैप्पीनेस, आई एम फीलिंग जॉयफुल। नेक्स्ट थिंग इज पैंडेमिक में लोगों की मास्टरी का लेवल चेंज हो गया। जैसे कि पहले लोग जो है वो जो पढ़ते थे वो बच्चे पढ़ते थे, जो लोग अपने जो भी काम कर रहे थे। आज का अब क्या हो गया, इस पेंडेमिक में बहुत एक वाइड चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आ गया है हम सबके बीच में कि हमारी सिचुएशंस बदल गई। हम सब अपने हॉबीज पे काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे मैं ये कहूँ कि आप अपने हॉबीज पर काम कर रहे हैं, आप देखिए लोगों की मास्टरी बदल गई है। द नेक्स्ट एम इज मास्टरी, वो आपकी बदल गई है। जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती थी, दे हैव स्टार्टेड कुकिंग। जिन लोगों को डांस नहीं आता था, वो डांस कर रहे हैं। जिन लोगों को बहुत दिनों से मन था कि मैं अपना वेट लूज करूं, मैं योगा करूं, दे हैव स्टार्टेड डूइंग योगा, मेडिटेशन, एनीथिंग। जिन लोगों को लगता था मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, दे आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो द बेसिक थिंग इज कि आपकी मास्टरी चेंज हो गई है। The third M from my point of view is that is being shifted or changed. The fourth thing is this meaningful social relationships. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हम शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस बात को डिनाई करे मेरे हिसाब से, क्योंकि परिस्थितियां बदलने की वजह से लोगों के जॉब्स चले गए हैं। तो पेंडेमिक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर ये आ गया है कि सीखना ना सीखना तो दूसरी बात है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो सिर्फ और सिर्फ सोशल हमारे पास इसीलिए थे क्योंकि हम कुछ उनके लिए कर पा रहे थे, बहुत चेंज आ गया है। एक मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगी, जब शुरुआत वाला वो जो फर्स्ट लॉकडाउन जिसको के लिए मैं बात करूंगी, तो दिल्ली के एक कपल का आया था कि दे वर गोइंग फॉर देयर हनीमून और दे हैव स्टक इन दिल्ली। वो वहां से बाहर नहीं जा पाए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि वो वापस आ पाए, नहीं आ पाए वापस। फिर उनको बहुत टाइम के बाद वो आ पाए, महीने डेढ़ महीने के बाद। तो उसमें जो उनका स्टेटमेंट था वो यही स्टेटमेंट आया था कि आई वॉज नॉट हैविंग मनी, कंपनी से पैसा नहीं दिया गया, फैमिली में नो वन वॉज देयर टू हेल्प अस, और दोस्तों ने जो भी मदद कर पाए की, उसके बाद दोस्तों ने भी विड्रॉ कर दिया या मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया है कि सोशल रिलेशनशिप, सोशल बॉन्ड्स, नेटवर्क्स की हम बात करें। शुरुआत में जब हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, या हम किसी के साथ भी अपना आपस में इंटरेक्शन अच्छा कर सकते हैं, तो बहुत सब लोग प्रॉब्लम में थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके एक चेंज आ गया है। एवरीबडी इज अवेयर कि हमें कैसे दूसरे के टच में रहना है, कैसे हमको दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। क्योंकि रिलेशनशिप तो था, बट अब सोशल रिलेशनशिप किस तरीके से चलेगा, क्योंकि अब वो नहीं रह गया कि हाय हेलो यू आर सिटिंग विद अनदर पर्सन। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं इस तरीके से कहते हैं मैम मेरा बर्थडे था, आई एम नॉट एबल टू सेलिब्रेट माय बर्थडे, आई एम नॉट एबल टू वेयर दैट ड्रेस। तो ये चेंज आ गया है, सोशल रिलेशनशिप्स बदल गए हैं क्योंकि मूवमेंट बदल गया है। तो पेंडेमिक में ये इम्पोर्टेंट फेज जो चेंज का आया है वो यही आया है मेरे हिसाब से। बाकी तो बहुत सारी चीजें मेजर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोल प्ले कर रहा है। Are you there, Swasti? Swasti, you are on mute. Please unmute yourself. I'm so sorry, ma'am. Am I audible now? Yeah. So, ma'am, अनुराग कुमार जी पूछते हैं कि कैसे ट्रू हैप्पीनेस ढूंढी जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक चीजों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं। देखिए ये जैसे मैं बात कहूंगी कि हैप्पीनेस कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मटेरियल कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता है। उसी तरीके से खुशी जो है ये हमको अपने आप में सेलेक्ट करना है। आप मैं बात अगर कहूँ कि आपको जो सबसे प्यारा हो, जो सबसे अच्छा पर्सन आपको लगता हो, आप उसको इनहैंस करने की अगर यहाँ पर मैं बात करूंगी, क्योंकि
अपने आप में अगर आप इनहेंस करेंगे तो शायद आप मिरर पे खड़े हो जाइए, एक आप रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखिए, आप अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। मैं बहुत, इसलिए मैं सेंट्रलाइज्ड बात करूंगी इसलिए क्योंकि दूसरों की खुशी के लिए जीने से आपको वो हैप्पीनेस कभी भी नहीं मिलेगी। आप अपने आप को उस लेवल पर खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे जो सच में आपने सोची हुई थी या जिसके लिए आप बात करेंगे। तो अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, आप हैप्पीनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो निगेटिव लोगों से दूर रहिए। निगेटिव अगर आपको लगता है कि कोई सिर्फ कंट्रोवर्सी की बातें हो रही हैं, या न्यूज की मैं बात कह दूं, आप अगर 4 घंटे न्यूज देख लीजिए तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको 1 घंटे तक भूख प्यास लगेगी, क्योंकि वो हमारे ब्रेन का एक सेटअप इस तरीके का होता है कि हम सब सोचने लग जाते हैं कि अरे बाप रे, अब तो हम सब मर ही जानने वाले हैं, अब हम शायद ही अलाइव रह पाए। तो निगेटिव न्यूज से उनका काम है, बच्चे कहते हैं कि मैम ऐसा कैसे करेंगे हम कि हम न्यूज ना देखें। ऐसे बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, लोगों का आता है, अरे मैडम दिन भर देख लिया न्यूज, अब तो मर ही जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। बट प्लीज, वो उनका जॉब है, जैसे मेरा जॉब है पढ़ाना, लोगों को बताना, मेरा जॉब है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सेम तरीके से न्यूज या मीडिया वालों का काम है उनको लोगों को बताना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए थोड़ा डर, थोड़ी चिंता जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैं बनारस में हूँ और जब ये शुरुआत हुई थी तो मैंने एक बड़ा मजेदार एक कॉन्सेप्ट सुना था कि हम लोगों को कुछ नहीं होगा क्योंकि हम भोले बाबा की नगरी में रह रहे हैं। जैसे जैसे करके पेंडेमिक इंक्रीज करा है, लोगों का डेथ रेट इंक्रीज करा है, अब लोगों के अंदर डर है, लेकिन अभी भी वो मेंटल स्टेट है कि अरे मरना होगा तो मर ही जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर आप ये कह देते हैं, मैं इसको यहाँ पर कोरिलेट करूंगी दोनों चीजों को, अगर आप ये कह रहे हैं कि मरना होगा तो मर ही जाएंगे, उसी तरीके से अगर हम ये सोच लें कि खुश रहना ही है और मैं खुश रहूंगी ही, मैं खुश रहूंगा ही, अनुराग जी शायद आपके क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तो खुश होने के लिए किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं होती। खुश होने के लिए अगर मैंने 1 घंटे किसी से बात कर ली, और खुशी आपको पता है, हम सबको मालूम है कि हम सबकी ओरिजिनल एग्जैक्ट खुशी किस चीज में है। वो गाना सुनने में हो सकता है, वो किसी के कुछ खाने पीने में हो सकता है, सोने में हो सकता है, टीवी देखने में हो सकता है, डांस करने में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, किसी भी चीज में वो हो सकता है। हो सकता है आपको बातें करके ही किसी से मजा आता हो। तो इसके लिए आप खुद ढूंढिए, अपने इनर सेल्फ में सारे लोग ढूंढिए कि आपको सच में खुशी किस चीज से मिलती है, और जो वास्तविक सच्ची जो खुशी है उसके उस डायरेक्शन में फिलहाल काम करिए, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, निगेटिव लोग बहुत ज्यादा हैं। और ये मैं नहीं कहूंगी कि आप निगेटिविटी से दूर जाइए, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बात की, आपने 4 नेगेटिव कॉन्सेप्ट आपके अपने ब्रेन में ऐसे ऐसा करके घूमने लग जाएंगे, और आप सोचेंगे ओ हो, अच्छा मुझे ये नहीं करना है, अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मुझे ये करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितनी बार मैंने कहा मैं ये नहीं करूंगी, उतनी बार मैंने उसको रिकॉल करा। तो करना क्या है, आप लोगों को ये सोचिए कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करूंगी, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बड़ी सबकी हेल्प करती हूँ। सिर्फ अपने आप में खाइए, और जब आप अपने आप को, मैं कह रही हूँ कि खुशी की क्या बात है, अरे आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, लुक ऑन टू योरसेल्फ, अपने आप को देखिए कॉन्फिडेंट, शोल्डर्स ब्रॉड करिए, आईज में एक खुशी लेकर के आइए, आप देखिए, आप ये सोचिए वाओ आई एम सो लकी कि मैं आज अच्छे से कपड़े पहनी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी लगती हूँ भाई, कोई बात ही नहीं। मुझे लगता है शायद ये सबके लिए, फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड to the eldest one, oldest one, everybody loves herself or himself first। आपको इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो प्लीज ट्राई टू लुक ऑन टू योरसेल्फ। और हैप्पीनेस को इंक्रीज करने की बात यहाँ पर हम एक कहेंगे, हम हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं, मैं हमेशा अपने जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, इफ दे विल बी हियर, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्लीज ट्राई टू हग योर मदर, हग योर फादर। एक बार दिन में जरूर उनके साथ एक फिजिकल, वो जो था जादू की छप्पी जिसे हमको कहना चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और उससे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खुशी आती है, ओनली खुशी।
कोई भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, टेक अ पिलो, हग योरसेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप को ऐसे आप खुश एक बार आप फील करिए, अपने आप को कोजी कोजी फील करने के लिए आप देखिए शायद उससे ज्यादा आपको हैप्पीनेस कोई नहीं दे सकता है। तो फिर से वही वाली बात है कि खुश रहना हमारी चॉइस है, कोई कंडीशन पे कभी आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगी, मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं खुश हूँ, क्योंकि जिस दिन वो जॉब लगेगी आपको एक सेकंड सेट आ जाएगा, एक थॉट आ जाता है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। तो जैसे ही आपने सेट कर देंगे आप अपने गोल्स को, गोल्स की सेटिंग जो है वो आपको चेंज कर देती है सिचुएशंस को, वो आपके मटेरियलिस्टिक आप जुड़ जाते हैं, आप इमोशनल नहीं जुड़े, आप इंटरनल नहीं जुड़े हैं, आप कहाँ जुड़ गए हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशंस के साथ जुड़ गए हैं। तो प्लीज डोंट ट्राई टू डू दैट दोज पर्टिकुलर थॉट्स विद योरसेल्फ, उनको अपने पास मत लाने दीजिए, सिर्फ कोशिश करिए कि आप क्या कर सकते हैं, और खुशी को ठीक है कोई निगेटिव है करने दीजिए, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है हम लोगों में स्ट्रेस के रिगार्डिंग कि अप्रोच है या अवॉइडेंस है, तो अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। अगर जो अभी की जो सिचुएशन चल रही है, अगर इस सिचुएशन की मैं बात करूंगी तो अप्रोच गुड नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अप्रोच करने चले जाएंगे तो सामने वाले के साथ आपका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस मेंटल स्टेट में है। तो फिलहाल सिचुएशंस ये हैं कि चीजों को अवॉइड करिए, आप खुश रहिए, अपने एंड पे जब आप खुश रहेंगे नो डाउट मुझे लगता है शायद दूसरा भी थोड़े समय के बाद अपने एंड पर खुश हो ही जाएगा। इससे बड़ी कोई बात यहाँ पर नहीं रह गई है। सोशल रिलेशन प्लीज अपनी ओन कंपनी में खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर इसको न्यूरोलॉजिकली या मैं साइंटिफिक भाषा में बात करूं तो हमारे ब्रेन में जो है पिट्यूटरी में हार्मोन का डेवलपमेंट होता है। अब आप कहेंगे कि मैम ये सिर्फ बातें हो रही हैं, बट इसका कोई रीजन नहीं है। तो साइंटिफिक में आप सब लोगों को बताना चाहूंगी कि एक ऑक्सीटॉक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में सेक्रीट होता है। बहुत साइंटिफिक में नहीं जा रही हूँ, थोड़ा सा एक सुपरफिशियल लेवल पर मैं बताना चाहूंगी। जैसे जैसे करके ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज करता है, आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सबको कवर अप करता जाता है। और ये कैसे इंक्रीज होता है? डोपामिन से, जो एक निगेटिव ट्रांसमीटर है हमारे अंदर, जो निगेटिविटी को और स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। तो अगर हम इंटरनल बात करें, जैसे मैंने कहा हग योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ, तो जैसे आप अपने आप में खुश रहना शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके आप देखिए आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन होता है। इसको बिलीव करिए, इसको मानिए। हम एक पूजा करके उठते हैं, हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, आप देखिए उसके बाद आपको एक बड़ा अच्छा एक ऑरा आपके आसपास आता है। What is that aura? That is your own happiness. That is your own aura. तो वो पॉजिटिविटी कोई दूसरा नहीं लेकर के आ सकता है। आपको कोई आप देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कई सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम फॉरेन टूर पे गए थे, हम यहाँ पे गए थे। फ्रैंकली स्पीकिंग सब लोग एक बार अपने आप को जज करिएगा कि 2 महीने फॉरेन टूर होकर के आ गए, उसके बाद जब अपने घर आते हैं, अपने उसी बेड में आते हैं, ठीक है दैट इज नॉट 7 स्टार या कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा, एक सिंपल सा आपका बेड होगा, आपका अपना पिलो होगा। आप देखिए वो जो खुशी होती है, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो शायद ही कोई आपको बहुत बड़ा मटेरियल पे प्रोवाइड कर पाए, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म। तो ये इंडिविजुअल अपनी बात होती है, अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो I was about to ask you this, but आपने इतने अच्छे से क्वेश्चन के आंसर्स विद टिप्स दिए हैं, तो आई थिंक हमें मैक्सिमम टिप्स मिल चुके हैं। हम एक क्वेश्चन है कि अभी यहाँ क्वेश्चन में भी आया था कि किसी को हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है, कोई कोशिश भी कर रहा है तो वो नहीं हैप्पीनेस कर पा रहा है, तो क्या वो डिप्रेस्ड है, उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है अगर ऐसा हो रहा है, और क्या ऐसे में प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन जिसने भी ये पूछा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप खुश रहना चाहते हैं और खुश नहीं रह पा रहे हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ।
जब हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो सर्टेनली मैं बात ये करूंगी, थोड़े समय तक की कोशिश, थोड़े समय तक का प्रयास सबको करना चाहिए खुश रहने के लिए, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक इसको निगेटिव नहीं लेना चाहिए। अगर कोई कहे कि मुझे प्रॉब्लम है, आई नीड अ काउंसलर, आई नीड समवन टू स्पीक, तो इसको हमको किसी को भी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कुछ नहीं होता है, सिर्फ अगर आपको ऐसा कभी भी फील हो कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर ले जाऊं, मैं कर नहीं पा रही हूँ, या मैं बहुत मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा भी क्वेश्चन आया है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, पर बहुत कोशिशों करने की कोशिश के बाद भी मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ, तो इसका मतलब सच बात है, यू नीड अ गाइडेंस या काउंसलिंग की मैं बात करूँ। काउंसलिंग भी इसलिए मैं नहीं कहूंगी क्योंकि काउंसलर तो एक थर्ड स्टेप पे आप चले जाएंगे, जब आप पर्सनल ही नहीं कर पाते तो यू नीड समवन टू गाइड। Go to your mother, go to your father, go to your friend or anyone else जो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन ऐसा है जिससे मैं अपनी बातों को शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप अपने आप की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हम क्या होता है हैप्पीनेस के लिए जब आपको लगता है कि अब आपने जैसे कहा ना कि मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ, दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड जजिंग योरसेल्फ, तभी तो आप ये बात आपका स्टेटमेंट आया है कि मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। तो जब कभी भी आप अपने आप को जज कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर आपको एक गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आपके जजमेंट में प्रॉब्लम है। ये आपका या एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये बहुत ऐसा होता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैंने क्या पाया, मैंने क्या किया, मैं तो इतना मेहनत करती हूँ फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, कोई मुझसे खुश नहीं है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं तो प्लीज थोड़े समय तक जो पॉजिटिव अप्रोचेस हैं साइकोलॉजी की या पॉजिटिविटी की, आप सब किसी काउंसलर के से बात कर सकते हैं, अब तो गूगल कर सकते हैं, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत सारे ए नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, आप करके देखिए। लेकिन अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे वो सच में खुशी नहीं मिलती, आई एम सर्चिंग फॉर रियल हैप्पीनेस, तो प्लीज गो एंड ट्राई टू स्पीक टू एनीवन। किसी से बात करना, किसी से शेयर करना, अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को कहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ हम सब ले लेते हैं, हम सब फिजिकल हेल्थ ले लेते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट, लेकिन आज भी जो एक सोशल टैबू बना हुआ है कि अगर मैं ये कह दूं कि मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो लोगों को लग जाएगा ओफो अब तो इनसे बात करना मुश्किल है, अब अगला स्टेप आ जाएगा कि हो सकता है सुसाइड कर लें, हो सकता है ये कुछ का कुछ कर दें। तो प्लीज गेट रिड ऑफ ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स, ऑल दोज नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको लगता है, आजकल बहुत सारे टेलीफोनिक काउंसलिंग सर्विसेज हैं, आप उनको ले लीजिए, आप उनके पास जाइए। आपको लगता है, मुझे लगता है शायद कोई भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप किसी एक अपने फ्रेंड से, किसी एक अपने बड़े से जो थोड़ा सा समझदार हो। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को जोड़ना चाहूंगी कि ऐसा अक्सर हो जाता है कि हम किसी अपने नोन टू पर्सन के साथ वो बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वो हमको जज करना स्टार्ट कर दें, एंड दिस इज ट्रू, मेक इट वेरी क्लियर। ये सच होता है कि हम वहां पर ये सोचते हैं और सामने वाला भी सोचता है, क्योंकि वो आपको आपके पैरामीटर से नहीं, वो आपको जैसे कल्चरल अप्रोच है, वो आपको उन सारे फैक्टर्स से कंबाइन करके जोड़ना शुरू कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज अगर ऐसा होता है बहुत लंबे समय में इसलिए कह रही हूँ कि वो लंबा समय आप डिसाइड करते हैं। अगर दिन में आपको 4 बार लगता है आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, देन यू नीड certainly you need a proper person, a counselor जो आपको हेल्प कर सके। कोई बहुत टेंशन की जरूरत नहीं होती है, कि मैं सबसे कहूंगी किसी भी बहुत बड़े टेंशन की यू नॉट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, बट एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो आपकी बातों को सुने और आपको एक अच्छी राय दे, एक सलाह दे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना कुछ बताया, लाइक इतनी सारी बातें, बी इट सेल्फ लव, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बी इट्स हाउ इम्पोर्टेंट इज टू टेक प्रोफेशनल हेल्प। So, ma'am, really thankful. It was an enlightening session. हम लोगों को इतनी सारी बातें नहीं पता थी, बट आपके थ्रू पता लगी। हम एक एक्सेप्टेंस आई है कि इट्स फाइन अगर हम इतने खुश नहीं हैं, थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहने से छोटी छोटी चीजों के लिए
आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर इतने अच्छे से दिया कि एक एक चीज की हमें टिप मिली. सर, वी आर रियली थैंकफुल. तो थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू पहल एंड थैंक यू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस चीज के लिए. स्वस्ति एंड कोमल, कि कोमल अप्रोच्ड मी एंड शी सेड कि एंड दिस इज रियली, और मैं अगर ये बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी स्वस्ति, इट्स रियली अ प्लेजर टू सी यू देयर, क्योंकि पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के लिए यू सिंपली नीड, आप आज तक मैं आपसे नहीं मिली, आप मुझसे नहीं मिली, लेकिन एक ऑरा होता है. वो कभी कभी ऐसा होता है कि बाय टेलीफोन और बाय किसी को देखने से कई बार ऐसा हो जाता है. मैं ये चीज को बहुत, हम इस चीज को बहुत फील करते हैं, मैं सच बता रही हूँ. और जैसे होता है ना किसी को देख करके खुशी आना, तो हैप्पीनेस के लिए कोई सिचुएशन, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े अंबानी आएंगे तो शायद हो सकता है कि हम इतने खुश ना हो. मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपनी बात कहती हूँ, छोटी छोटी चीजों में हम सबको खुशियां ढूंढनी चाहिए, क्योंकि जो छोटी चीजों की जो खुशियां होती है ना, वो हमारी अपनी क्रिएटेड होती हैं. और बहुत बड़ी चीजों के पीछे भाग करके जो खुशियां होती हैं, मैं सबको ये बात कहूंगी, वो खुशियां आपकी अपनी नहीं होती हैं. वो फिर वही बात कि वो या तो किसी इंडिविजुअल से या तो किसी मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ही जुड़ी होती हैं. तो कोशिश करते रहना चाहिए, खुशियां बढ़ाना चाहिए. और हमेशा मैं कहती हूँ कि कभी गाना है, कभी उसको गुनगुनाइए, कभी कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि आपको सच में खुद से अच्छा लगे. वाह, चलिए, थैंक थैंक यू यू. सो मच मैम. पूरी पहल टीम की तरफ से आपको थैंक यू. हमारी ऑडियंस को हम कहना चाहेंगे कि आइए खुशी को चूज करते हैं, एक चॉइस लेते हैं टू बी हैप्पी. एंड अगर ज़रूरत हो तो टाइम पे हेल्प लेने में भी हिचकिचाते नहीं हैं. इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स, बट इट्स ऑल्सो ओके टू बी टू टेक हेल्प ऑन टाइम. सो थैंक यू सो मच. आप सबको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करें और सबको खुशियाँ बांटें. थैंक यू सो मच स्वस्ति.